हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओंकार एकेडमी। पहले कंसाइनमेंट का हम 2 वीडियो दे चुके हैं। पहला वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट, ये सारा विषय हम लोग जाने हैं। नेक्स्ट जो हम वीडियो दिए हैं, डिफरेंट सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक का कैसे वैल्यूएशन होता है वो हम बताएं, और कुछ बाकी रह गया था क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, वो दिखाएंगे। और हम लोग आज को मेनली फोकस करेंगे, अगर जो कंसाइनर है वो जो गुड्स सेंड करता है, वो अगर इनवॉइस प्राइस में गुड्स सेंड करता है तो उस टाइम हम लोग कैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। तो पहले एक विषय था जो था कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, अनसोल्ड स्टॉक। जब हम तो नॉर्मल लॉस का दिखा दिए कैसे ट्रीटमेंट होता है, एबनॉर्मल लॉस का भी दिखा दिए हैं। अभी आज को हम लोग जानेंगे एक ही जगह में अगर नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस है, दोनों है, और तब कैसे स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन हम ऑलरेडी बोर्ड में लिख के रखे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड अनसोल्ड स्टॉक का क्वेश्चन है, जिसमें पहले तो गुड्स सेंड किया है कंसाइनर ने 5000 kg एट द रेट 8 पर kg। सेकेंड, एक कंसाइनर जो एक्सपेंसेस किया है, जैसे कैरेज ₹50, फ्रेट ₹250, इंश्योरेंस ₹200। ड्यूरिंग ट्रांजिट, जब कंसाइनर ने गुड्स भेजा, मतलब ट्रांजिट में क्या हुआ है ना, ट्रांजिट में 500 kg डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके लिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 2500। दैट इज द एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, एंड ऑल्सो द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹2500। whereas the expenses paid by the consignee, that is the consignee paid expenses on behalf of the consignor, go down rent, that is the ₹500 go down rent, that is the recurring expenses because go down rent is paid monthly basis, so it's a recurring expenses, so it will be not proportion with the value of consigned goods or to valuation of unsold stock. To calculate the value of unsold stock, it will not be proportion. Same way the salesman's salary also are not the recurring expenses, but it's selling expenses. It's also not proportionate with the value of unsold stock. That is, it will not calculated for calculating the value of unsold stock. And same way, the same thing, the goods sent by the consignor to consignee, total 5000 kg. Out of the 5000 kg, consignee sold 3500 kg एट द रेट 9.5 पर kg। इसका मतलब क्या हुआ ना, जो गुड्स कंसाइनर ने 5000 kg सेंड किया था, उसमें 500 kg का लॉस हो चुका है ट्रांजिट में, और जो कंसाइनर ने रिसीव कितना किया, 5000 में से 500 लॉस हो गया। लॉस के बाद कंसाइनी 4500 रिसीव किया, उसमें से 3500 को बेच दिया। एंड लास्ट में बोला है कुछ स्टॉक नॉर्मल रीजन के कारण लॉस हुआ है, दैट इज द 20 kg। नाउ हाउ विल कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, हम लोग देखते हैं। पहले जो प्रोसीड्योर है उसी तरह हम लोग जाएंगे। एक यूनिट का कलम बनाएंगे हम लोग, और दूसरा अमाउंट का कलम। अमाउंट, goods sent by the consignor, that is the goods sent। goods sent कितना है ना, 5000 kg, 5000, और पर kg 8 rupees, so 40,000 total amount of goods sent by the consignor to the consignee is ₹40,000। and for sending the goods to the consignee, consignor made some expenses such as carriage, freight and insurance. The total amount of the expenses paid by the consignor is 200, 250 and 50, that is
500 rupees, that is 500. Total amount expenses paid by the consignor: 50 for carriage, 250 for freight, and 200 for insurance. 50 and 250, 300, 300 plus 200, that is 500 rupees paid by the consignor for sending the goods to the consignee. This amount will proportionate with the goods sent. And again, expenses paid by the consignee, it will be not proportion, because its go down rent is a recurring in nature. And now the total goods sent by the consignor is 5000 kg, and amount of expenses, total expense of the goods, that is 40,500. Now out of the 5000 kg, 500 kg were destroyed. It may be by accident or any reason, it is destroyed in the transit, that is 500 kg were destroyed. That is the abnormal loss. Abnormal loss, 500 kg. As we know that the cost of 5000 kg is 40,500. So how much will be the cost of 500? That is 40,500 for 5000 kg into 500. 40,500 divided by 5000 into 500, that is 4050. 4050 is the amount of abnormal loss for 500 kg. The remaining goods is 4500, and the amount for 4500 is 40,500 minus 4050, that is 36,450. 36,450 is the amount of goods which is reached to the consignee, Now in the question, some portion of the goods reached to the consignee. After reaching that, 20 kg is lost due to the normal reason. 20 kg. Now we have to subtract the unit from the total goods received by the consignee, that is the normal loss to be deducted from the total units of goods consigned. 20 kg नॉर्मल लॉस जो 20 kg हुआ है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता. इट इज ड्यू टू द normal loss, means it may be a different reason, it may be happened, but it's not a avoidable. We can't avoid the particular loss, so it has no value. So 20 units का कोई वैल्यू नहीं है. तो इसका मतलब कंसाइनी के पास कितना अमाउंट का गुड्स रह गया ना. 4500 minus 20, that is 4480 unit, and the value of 4480 kg is 36,450. Now the consignee sold the goods out of the 4480. Consignee sold goods sold by the consignee, goods sold, that is 3,500 units. 3,500 unit, that is a kg sold by the consignee. So the amount of 3,500 is, as we know that 36,450 is the total cost for 4,480 kg. So the value of 3,500 kg is 36,450 divided by 4480 into 3,500. That is the value of goods sold. The cost of goods sold 28,477. So the value of unsold stock, value of unsold
sold stock, that is unsold stock 4,480 minus 3,500, that is 980 kgs. Price is 36,450 minus 28,477, that is the value of unsold stock is 7973. तो हम लोग का क्वेश्चन ये था कि गुड्स हम लोग 5000 kg सेंड की है 8 रुपीज़ करके, उसके बाद कंसाइनर का एक्सपेंसेस एज अ कैरेज फ्रेट एंड इंश्योरेंस दिया हुआ था, ट्रांजिट में 500 kg लॉस था, इंश्योरेंस क्लेम 2500 था, और एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी, गोडाउन रेंट एंड सेल्समैन सैलरी एंड गुड्स सोल्ड 3500 kg था, नॉर्मल लॉस 20। तो ये गुड्स सेंड 5000 40,000 8 रुपीज़ करके है 40,000, expenses total expenses paid by the consignor 500, total value of the 5000 kg of goods is 40,500, out of the 5000 kg abnormal loss is 500, that is 5000 minus 500, that is remaining goods reached to the consignee is 4500 kg. So the value of 500 kg is 4050, that is 4050, and the remaining value of the goods, that is 4500 value is 36,450. Out of the 4500, 20 units 20 kg is lost due to normal reason, so the remaining goods amount is 4480 and the value is 36,450. Out of the 4,480 kg, 3,500 is sold by the consignee for costing rupees 28,477. So the remaining value, that is 980 stock value is 7973. Now the value of unsold abnormal loss, value of abnormal loss, how to calculate? Now 4050, out of the 4050 we receive from the insurance company 2500. The actual loss अगर हम लोग देखते हैं तो actual loss for the goods, that is 4050 minus received from insurance company 1550 is the value of abnormal loss. 1550 is the value of abnormal loss and the value of closing stock is 7973. अभी हम लोग का स्टॉक का तो पूरा ख़त्म हो गया। अभी हम लोग जानेंगे अगर इनवॉइसिंग गुड्स ऑफ इन्फ्लेटेड प्राइस, यानी जब गुड्स को हम लोग कंसाइनी को जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ ऐड करके कुछ अमाउंट ऐड करके कुछ सर्टेन परसेंटेज ऐड करके सेंड करते हैं तो उसको बोला जाता है इनवॉइसिंग गुड्स एट ए इन्फ्लेटेड प्राइस। जैसे इस सवाल में है, सवाल में क्या है ना, गुड्स सेंड 50 यूनिट्स एट अ प्रोफर्मा इनवॉइस वैल्यू 400 ईच, मतलब जो गुड्स सेंड किया गया है उसका प्रोफर्मा इनवॉइस मतलब इनवॉइस वैल्यू कितना है, सेंडिंग प्राइस कितना है 400, लेकिन इस 400 का एक्चुअल कॉस्ट कितना है ना 280 ईच, 400 का 280 यानी 120 रुपीज़ ऐड करके इनवॉइस प्राइस हम लोग निकाले हैं। उसके बाद इसको सेंड करने में एज यूजल कंसाइनर ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस दिया है 650 एंड 400, दैट इज 1050 रुपीज़ एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर। सेम वे क्या हुआ, जो क्या होता है ना, एजेंट जो है कंसाइनी जो है आउट ऑफ द 50 यूनिट्स कितना यूनिट सेल कर दिया ना 30 यूनिट्स, 13,000 में 30 यूनिट क्या कर दिया, सेल कर दिया। और कंसाइनी का एक्सपेंसेस हम सिंपल दिखाए क्योंकि हमको दिखाना जो है वो इनवॉइस प्राइस में सेंड करने से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस तरह हमको बुक्स में दिखाना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू दिखाना है वो इनवॉइस प्राइस में ही दिखाना है। तो प्रोसेस क्या रहेगा, पहले हम लोग क्या करते थे, एक यूनिट बनाते थे, एक अमाउंट बनाते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट बनाएंगे, यूनिट का कलम यूनिट, नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग इनवॉइस वैल्यू IV R एंड कॉस्ट, इस तरह हम लोग निकालेंगे। तो अगर इस तरह हम लोग निकालते हैं तो कैसे होता है ना, पहले गुड्स सेंड कितना हुआ है, अब पहला हम लोग क्या लिखते हैं, गुड्स सेंड हम लोग गुड्स कितना सेंड किए ना 50 यूनिट। अभी ये जो 50 यूनिट है
इन्वॉइस प्राइस कितना है, इन्वॉइस वैल्यू कितना है ना 400। तो हम लोग 50 हम लोग क्या करेंगे ना 50 इंटू 400 दैट इज़ 20,000 इज़ द इन्वॉइस वैल्यू। और उसी में हम लोग अगर देखते हैं तो 50 इंटू 280 मतलब हो गया 14,000, यानी 14,000 का सामान हम लोग कितने में कंसाइनी को सेंड किए 20,000 में। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं ना ऐड करते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर ने कितना एक्सपेंसेस किया है ना, कंसाइनर ने ना 650 किया है फ्रेट एंड 400 इंश्योरेंस, तो कुल मिला के 1050। हम लोग क्या करते हैं इसके साथ भी लिखते हैं 1050 और इसके साथ भी 1050 हम लोग लिखते हैं दोनों के साथ ही। इसके बाद हम लोग एक्चुअल फिगर में आएंगे। इसके बाद क्या होता है ना एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी हम लोग ऐड करते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी ने कितना खर्चा किया, इसमें हम लोग देख रहे हैं लैंडिंग चार्जेस 70 एंड कैरेज दोनों ही नॉन रिकरिंग है, नॉन सेलिंग है, तो इसको प्रोपोर्शनेट हम लोग करेंगे। तो इसमें कितना हो गया ना 70 प्लस 130 मतलब 200, तो 200 इसमें भी दिए, इसमें भी 200 दिए। तो अभी 50 केस जो है 50 केस का इनवर्स वैल्यू कितना हो गया ना 21,250 इनवर्स वैल्यू, और उसी का कॉस्टिंग कितना हो गया ना 15,250। इसमें से क्या हुआ ना लेस करेंगे क्या ना गुड्स सोल्ड कितना है ना 30 यूनिट्स। अभी 30 यूनिट का इन्वॉइस प्राइस हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे 30 यूनिट का इन्वॉइस प्राइस ना 21,250 डिवाइड बाय 50 इंटू 30, यानी इन्वॉइस वैल्यू का जो प्राइस है कितना है ना 12,750 ये है। तो उसी तरह अगर कॉस्टिंग हम लोग निकालते हैं, कॉस्टिंग जब निकालेंगे तो अगला हम लोग क्या देखेंगे ना 15,250 डिवाइड बाय 50 इंटू 30 यानी 9,150 यानी मेरे पास 20 यूनिट का है, तो 20 यूनिट का जो वैल्यू है 20 यूनिट का ओरिजिनल कॉस्टिंग कितना है ना वो 15,250 माइनस 9,150 यानी 6,100 का वैल्यू मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 6,100। तो अभी हम लोग एक चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें क्या वैल्यूएशन जो हम लोग कर रहे हैं इसमें 6,000 कॉस्ट प्राइस आया है, तो इसका इन्वर्स वैल्यू कितना होगा, ये माइनस ये करने से क्या होता है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। 21,250 माइनस 12,750, चलिए ये होना चाहिए 8,500 ये वैल्यू। अभी हम लोग इसको थोड़ा जानेंगे, क्यों जानेंगे ना इसका ओरिजिनल कॉस्टिंग कैसे होता है हम लोग देखेंगे। एक्चुअली क्या है मेरे पास 50 यूनिट है, ये 50 यूनिट है, उसमें से हम 30 यूनिट सेल किए, तो मेरा जो गुड्स है जितना भी सामान है उसमें 20 यूनिट बच गया। अनसोल्ड स्टॉक कितना है 20, तो 20 का अगर 20 यूनिट बच गया तो 20 यूनिट इंटू 280 कॉस्टिंग कितना है 280, लेकिन इसको अगर इन्वर्स प्राइस में हम लोग करते हैं तो इसका कितना होगा ना 400 होगा। 20 इंटू 400, तो 20 इंटू 400 मतलब कितना हो गया 8,000 20 यूनिट्स का 400 करके इनवॉइस प्राइस में अगर इसका वैल्यूएशन करते हैं तो अभी देखना पड़ेगा इस 20 यूनिट में जो हम लोग प्रोपोर्शनेट करेंगे क्या क्या प्रोपोर्शनेट करेंगे ना। एक एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस है कंसाइनी और कंसाइनर एंड कंसाइनी का ये, तो ये जो गुड्स है ये कैसे हम लोग प्रोपोर्शनेट करेंगे ना 1050 प्लस 200, ये टोटल अमाउंट खर्चा हुआ है फॉर 50 यूनिट्स के लिए इनटू 20 यूनिट्स का खर्चा कितना। तो 20 यूनिट्स का खर्चा कैसे निकाल रहे हैं ना 1050 प्लस 200 दैट इज 1250 डिवाइड बाई 50 इंटू 20 यानी 20 का प्राइस कितना हो रहा है
न 500। तो ये मेरा इनवॉइस वैल्यू में गुड्स का वैल्यू कितना हो गया 8500, दैट इज़ द वैल्यू यहाँ पर भी आ गया। किस तरह हम लोग निकाले ना, हम लोग निकालने का प्रोसीजर बहुत इजी है, लेकिन हम लोग इसको क्यों दिखाएं, क्योंकि अगर समझने में दिक्कत होगा तो इसलिए हम दिखा दिए। जैसे पहले प्रोसीजर था वही हम कॉस्ट प्राइस साइड बाय साइड लिख दिए। अगर हमको साइड बाय साइड लिख के निकालते हैं तो कॉस्ट कितना है वो भी हम लोग जान गए, कॉस्ट प्राइस का वैल्यूएशन कितना है, और इधर हम लोग जान गए इनवॉइस प्राइस में उसका कितना वैल्यूएशन होगा, तो 8500। तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, और इस तरह भी छोटा वर्किंग करके भी इसका वैल्यूएशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो वैल्यू जब भी होगा हमेशा याद रखना होगा कि जो कॉस्ट इनवॉइस हो रहा है, कॉस्ट जो है मतलब इसका जो एक्सपेंसेस ये जितना भी ऐड हो रहा है, ये एक्सपेंसेस जो हम लोग कर रहे हैं उसके साथ कुछ रिलेशन नहीं है, उसको अलग से हम लोग प्रोपोर्शनेट करके इसको निकाल सकते हैं और इसका वैल्यूएशन अलग से निकाल सकते हैं। जब ये प्राइस दिया रहेगा, जब ये प्राइस परसेंटेज में दिया रहेगा तब हम लोग अलग अलग से निकाल के हम लोग करेंगे। तो ये प्रोसीड्योर है इनवॉइस प्राइस में वैल्यूएशन करने का स्टॉक का, लेकिन हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन इसमें दिखाएंगे, ये कॉस्ट प्राइस में वैल्यूएशन हम लोग नहीं दिखाएंगे जब इनवॉइस वैल्यू दिखाना होता है, क्योंकि हम लोग इनवॉइस प्राइस में गुड्स सेंड किए इतना वैल्यू दिखाएंगे। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग 8500 दैट द इनवॉइस वैल्यू में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे और भी वीडियो हम लेके आएंगे रिलेटेड टू कंसाइनमेंट, क्योंकि अभी जो दिखाना बाकी है कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है वो दिखाएंगे। और आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिए। आज का वीडियो भी देखिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग के साथ जुड़ना तो आप ओंकार एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ओनली कॉल करना है। नंबर है 9933458567 एंड अनदर नंबर 9749436372। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।